Good morning, students. Myself, Jitendra Kumar Jain, PGD in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School. As we have already started the unit electrostatics and the chapter is electric charges and fields. And we have discussed many videos before this like Coulomb's law, properties of charges and the basic concept of charges. Today we are discussing in the continuing the vector form of Coulomb's law. Since in the last video we have discussed about the scalar form of Coulomb's law, that is equal to F is equal to K Q1 Q2 upon R square. This is the mathematical equation, mathematical form of Coulomb's law, where K is the proportional constant and it is written as 1 upon 4 pi epsilon naught. You already wrote it. Now we are discussing vector form of Coulomb's law because force is a vector quantity. So we have to write this force in the vector notation. How can we write? Initially we are taking two charges, Q1 and Q2, and this is origin. These two charges Q1 and Q2 are placed the two position vectors R1 and R2 from the origin. Means this R1 is the position vector of Q1 from origin and this R2 is the position vector of Q2 from origin. Now, but this R1 and R2 both are not the distance between the charges. This is only position vectors from the origin. So to find the distance between the charges, we use the triangle law of vector addition. यानी आपको क्या करना है, ये जो R1 R2 है ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस है चार्जेस की, बट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो कौन सी होगी, दिस वन. तो टू फाइंड दिस डिस्टेंस we can use the triangle law of vector addition. किस तरह से यूज करते हैं देखिए, the displacement vector of Q2 from Q1 means we are calculating the displacement vector of Q2 from Q1, यानी यहाँ इसके डिस्टेंस कहाँ से, Q1 से, वो किस डायरेक्शन में आएगी, that is written as R21 vector. It means it is displacement vector of Q2 from Q1. अगर यहाँ से देखें इस डायग्राम से तो R1 की डायरेक्शन ये है, R21 की डायरेक्शन ये है एंड R2 की डायरेक्शन ये है. तो ट्राइंगल लॉ को अगर यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन राइट R2 इज इक्वल टू दिस फाइनल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस R21, यानी R1 प्लस R21, यानी इसके हेड पर इसकी हेड टेल को पुट किया तो ये जो मिलेगा ये आपका फाइनल वेक्टर है. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट R21 इज इक्वल टू व्हाट, अपने को क्या चाहिए, R21. तो R21 इज इक्वल टू R2 minus R1. इस R1 को इधर शिफ्ट करें, ट्रांसमिट करें तो R2 minus R1. This is called equation number 1. This R21, that is R2 minus R1, is the displacement vector of Q2, charge Q2 from charge Q1. If we are talking about the magnitude of this vector, then we can write this mod on the vector. R21 vector mod लगाते क्या बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन की अपन पे बात नहीं करेंगे. तो R21 mod is equal to R2 minus R1 mod. This is called equation number 2. Similarly, in this way, we can calculate the displacement vector of Q1 from Q2. Displacement vector of Q1 from Q2. यानी आप इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं. Again, we can use the triangle of vector addition. How we can use R2 and R12? That is the displacement vector of Q1 from Q2. इसमें इस R12 को ऐड करेंगे जो कि इस डायरेक्शन में है, तो आपको क्या मिल जाएगा, R1, और उसी को रिप्लेस करते हैं तो R12 is equal to how much, R1 minus R2. This is the equation number 3, that is the displacement vector of Q1 from Q2. Similarly, if you are calculating the magnitude of this vector, then we can put the mod on this vector. R12 vector mod is equal to R1 minus R2 mod. Clear? This is equation number 4. Actually we are calculating हमारा जो टारगेट कैलकुलेट करने का वो है, हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसको चलते हैं आगे. वी आर गेटिंग 1, 2, 3 एंड 4. इन 4 इक्वेशन से अब कुछ रिजल्ट्स अपने को निकालने हैं. कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट वन कौन सी, दिस इक्वेशन 1 एंड 3 सॉरी, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2. तो इन दोनों को अगर से ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस R21 इज इक्वल टू माइनस R12. ये इसके नेगेटिव साइन को बाहर लेकर अगर लिखेंगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस r12 मिल जाएगा। वी कैन राइट कि दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम Q1 इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम Q2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपने को यहाँ से दिख रहा है कि R12 इस डायरेक्शन में, सॉरी R21 इस डायरेक्शन में एंड R12 इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों के मैग्नीट्यूड जो होंगे दोज मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो चाहे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो, डेफिनेटली वो इक्वल आनी है। कितनी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 मैग्नीट्यूड से अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे होंगे, सेम होंगे। तो चाहे R21 मैग्नीट्यूड लिखे या R12 मैग्नीट्यूड लिखे, डेफिनेटली वो सेम आएंगे। इन्हीं के बेसिस पर, इक्वेशन 5 और 6 के बेसिस पर हम क्या करना चाह रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो द यूनिट वेक्टर R21, R21 का क्या निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R21। क्लियर। यहाँ इसी प्रकार सिमिलरली यूनिट वेक्टर अगर आपको 12 निकालना है, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। दिस इज इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 5 एंड 6 है, वी यूज इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 7। यानी क्या करते हैं, इस R21 की बजाय जो वेक्टर है उसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस R12, और जो R21 मोड है उसकी जगह क्या रख देंगे, R12। तो फर्दर अपने को क्या मिलता है, दिस R21 यूनिट वेक्टर इस इक्वेशन में इज इक्वल टू R21, इसकी जगह क्या रखना है, माइनस R12, तो दिस माइनस R12। इसी तरह से R21 की जगह क्या रखना है, इक्वेशन 6 से R12, ये मोड R12 हो गया। और यहीं से अगर आप इक्वेशन 8 देखते हो तो इक्वेशन 8 में क्या लिखा हुआ, R12 अपॉन R12 मोड, तो इसको अपन क्या कह देंगे, दिस इज कॉल्ड R12 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल रही है, एंड फाइनल इक्वेशन इज व्हाट, कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल बट अपोजिट टू द R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब इसके कंटिन्यूशन में हम फोर्स की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, और फोर्स की इक्वेशन के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि दोनों चार्जेस किस टाइप का फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की चीज आपको ध्यान रखनी है, और बाकी चीजें अपन आगे कंक्लूड करेंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दैट इज रिटन एज F21। व्हाट वी कैन राइट, F21 मीन्स force on 2 due to 1. Formula is what, K Q1 and Q2 upon distance is what, R21 square, और अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो दिस R21 यूनिट वेक्टर। वी कैन राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 9। क्लियर। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये फोर्स अपन लिखना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो दिस कैन बी रिटन एज F12। F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज K Q1 Q2, न्यूमरेटर इज सेम बट हियर R12 स्क्वायर, यहाँ क्या था R21 और यहाँ क्या आ गया R12 स्क्वायर, एंड यूनिट वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 9 आपने लिखी है, इन दिस इक्वेशन वी कैन यूज दिस यूनिट वेक्टर फॉर्मूला। तो सेल लिखेंगे इन इक्वेशन 9 क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2, इट इज सेम, बट R21 की भी क्या रख देंगे, R12, जो इक्वेशन 4 में था, तो R12 स्क्वायर, एंड R21 की क्या रख देंगे, R12 माइनस में, यानी यहां से जो R21 यूनिट वेक्टर था इसकी जगह क्या रख देंगे आप, माइनस R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर। ये लिख दिया अपन ने, तो क्या बन जाएगा, दिस F21 इज इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर ले लें, माइनस K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब ये जो चीज है
माइनस के अलावा कंप्लीट ब्रैकेट जो अपन बोल रहे हैं, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 10 इज व्हाट, k q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 यूनिट वेक्टर, इट इज सिमिलर टू दिस, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू f12। तो क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन 10 वी कैन राइट this f21 is equal to माइनस f12। इस इक्वेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और क्या रिजल्ट है कि दिस f21 is equal to माइनस f12 वेक्टर मीन्स both charges are applying equal forces on each other, both charges are applying equal forces on each other but in opposite direction, ध्यान रखना आप, माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट बोथ फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। तो यहां से दिस फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी वहां पर भी एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाया उसके डेफिनेटली अपोजिट और इक्वल क्या एक फोर्स लगेगा। तो सिमिलरली यहां पर भी Q1 is applying the force on Q2 and similarly Q2 is applying force on Q1 in same magnitude but directions are opposite, ये आपको ध्यान रखनी है, that is according to Newton's third law of motion, क्लियर। अब इसको अगर अपन डायरेक्शन वाइज देखना चाहें तो किस तरह से देख सकते हैं, उसको समझिए आप थोड़ा सा। डायरेक्शन किस तरह से, फिर आपके पास दोनों फोर्सेज हैं और चार्जेस के नेचर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो चार्जेस के नेचर के अकॉर्डिंग किस बात कर सकते हैं। पहला केस फर्स्ट में कि इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन मींस क्या कि जो प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 है जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं Q1 Q2 वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ये क्या पॉसिबल है, मींस बोथ चार्जेस कब हो सकता है, बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों चार्जेस कैसे हो, पॉजिटिव हो, या दोनों चार्जेस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तब जाके कंडीशन आपको मिलने वाली। इट मींस इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस अगर सेम हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। तो इसी तरह से अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो क्या बोलेंगे कि सपोज आपके पास Q2 है, दिस इज Q1, तो डेफिनेटली Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F21, एंड Q2 भी Q1 को उतने ही अमाउंट से रिपेल करने वाला है। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई, लेकिन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो दिस इज द डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 मींस बोथ चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, और दोनों के अमाउंट कितने होंगे फोर्सेस के, डेफिनेटली सेम होने वाले हैं। इसी कंडीशन में अगर अपन ये वाली कंडीशन ले लें, इसी की कंडीशन में कौन सी वाली कंडीशन ले कि इफ केस नंबर 2, if Q1 and Q2 is less than 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू कितनी आएगी, मीन्स वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। एक ही कंडीशन है कि दोनों चार्जेस कैसे हो, डिफरेंट नेचर को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और अपन पढ़ चुके हैं कि अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन शो करेंगे। तो इसी टाइप से अगर देखें तो ये Q1 Q2 है, ये Q1, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है सी, तो ये Q1 क्या करेगा, इस Q2 को अट्रैक्ट करेगा, Q1 अप्लाइज फोर्स ऑन Q2 इन दिस डायरेक्शन, अट्रैक्शन, एंड सिमिलरली Q2 अट्रैक्ट्स द Q1 इन दिस डायरेक्शन। F12 मींस Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगना है, तो डायरेक्शन कैसी रही, दोनों फोर्सेस का अमाउंट इक्वल होगा, पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, जो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, F21 is equal to minus F12। तो दिस इज द वेक्टर नोटेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि बोथ फोर्सेस, बोथ चार्जेस अप्लाइज इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों डायग्राम, दोनों केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने कूलम्ब से रिलेटेड स्केलर फॉर्म भी देख ली है, कूलम्ब से रिलेटेड अपन ने वेक्टर फॉर्म भी देख ली है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस पर बेस क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।